In this video, we will study the reaction intermediates. This is the first part of reaction intermediates. Reaction intermediates are the species formed by bond cleavage during the course of reaction. They are short-lived and highly reactive. They get converted to products as soon as formed. Some important reaction intermediates are carbocation, carbanions, carbon free radicals, carbene, nitrene, and benzene. We will study here only about first three reaction intermediates, that is the carbocation, carbanions, and carbon free radicals. The carbocations are the reaction intermediate in which carbon bears a positive charge. Similarly, carbanions are the reaction intermediate in which carbon bears a negative charge, and carbon free radicals are that reaction intermediate which a carbon bears a free electron. This is the carbene and this is the nitrene, and this one is the benzene. Out of these only, here we will study only three reaction intermediates, that is the carbocation, carbanion, and carbon free radicals. Carbocation, the reaction intermediates in which carbon bears a positive charge is called carbocation. They are generated by heterolytic cleavage of covalent bond. For example, this is the CX bond. It is heterolytically cleaved. Both electron goes to X atom. We get carbocation and X minus. Carbocation is the intermediate in which carbon bears a positive charge. They are named as alkyl carbocation. For example, CH3 plus is called methyl carbocation. CH3CH2 plus is called ethyl carbocation. Structure of carbocation. The positive charge bearing carbon is sp2 hybridized with triangular planar structure. And the unhybridized p orbital. The two lobes of unhybridized p orbitals are perpendicular to the plane of this plane. One lobe is above the plane, another lobe is below the plane. This is the structure of carbocation, in which carbon and the triangular planar structure and the unhybridized p orbitals is perpendicular to this plane. One lobe is above the plane and another lobe is below the plane. Stability of carbocation. Carbocations are short-lived species. They are highly reactive. Their reactivity is due to presence of positive charge on carbon atom. Thus, the factor which increase the charge density on carbon will increase the reactivity of carbocation and hence decrease the stability. There are two factors which affect the stability of carbocation: hyperconjugation and resonance. Let us see how the stability of carbocation is affected by hyperconjugation. This is the methyl carbocation and this one is the ethyl carbocation. In ethyl carbocation, there are three CH sigma bond in conjugation with this positive charge. This 1, 2, 3 CH sigma bond in conjugation, positive charge एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर CH सिग्मा बॉन्ड इन कंजुगेशन, एक बॉन्ड छोड़कर. कंजुगेशन का मतलब एक बॉन्ड छोड़ करके के विसिनिटी में CH सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर अल्फा कार्बन से
3 है, तो ये 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स इसके लिखे जाएंगे। जैसे ये CH इन्वॉल्व हो रहा है तो यह हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होगा, और यदि दूसरा वाला इन्वॉल्व हो रहा है तो यह हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होगा, और यह अगर ये नीचे वाला इन्वॉल्व हो रहा है तो यह हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होगा। इस प्रकार से कुल 1, 2, 3 और एक यही है 4 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इसके लिए लिखे जाएंगे। जिसमें हाइपर कंजुगेशन होता है वो स्टेबल होता है। मेथिल कार्बोकेटायन में हाइपर कंजुगेशन नहीं है, नो CH सिग्मा बॉन्ड इन कंजुगेशन विथ इन कंजुगेशन, देयरफॉर नो हाइपर कंजुगेशन। इस मेथिल कार्बोकेटायन में हाइपर कंजुगेशन नहीं है, जबकि एथिल कार्बोकेटायन में 4 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर लिखे जा सकते हैं। इसलिए एथिल कार्बोकेटायन स्टेबल होगा मेथिल कार्बोकेटायन से। सिमिलरली हम बात करें सेकेंडरी कार्बोकेटायंस की, आइसोप्रोपिल कार्बोकेटायन। दिस वन इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपिल कार्बोकेटायन। इट हैज 6 CH सिग्मा बॉन्ड, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, इन कंजुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज। 6 CH sigma bond in conjugation. Therefore, 7 hyperconjugative structures can be written for this ion, isopropyl carbocation. 3 from this 3 hydrogen and 3 from this 3 orbital hydrogen, and one is written as this. Therefore, 6 CH sigma bond is in conjugation and 7 hyperconjugative structures can be written for this isopropyl. This is the tertiary butyl carbocation. All the 3 hydrogens of methyl carbocation is replaced by methyl group. Tertiary butyl carbocation. This one is tertiary butyl carbocation. It has 9 CH sigma bond. 3, 3, 6, 3, 9. 9 CH sigma bond in conjugation. इससे इस पॉजिटिव चार्ज के कंजुगेशन में एक बांड छोड़ करके 3 सिग्मा, एक बांड छोड़ करके 3 सिग्मा, यहाँ पे 3 CH सिग्मा बांड, कुल 9 है और एक यही है। अतः 10 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर के लिए संभव होगा। तो हम हाइपर कंजुगेशन कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। इसके अनुसार जिसमें जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। इस प्रकार से जिसमें 10 है यह टर्चरी है, 3 डिग्री लिखते हैं टर्चरी कार्बोकेटायन, यह सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर यह सेकेंडरी है जिसमें 2 कार्बन जुड़े हुए हैं कार्बन से, सेकेंडरी है। और प्राइमरी जिसमें 1 कार्बन जुड़ा होगा और सबसे कम स्टेबल मेथिल होगा। This can also be explained on the basis of inductive effect. इस स्टेबिलिटी ऑर्डर को हम इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम जानते हैं कि कार्बोकेटायन की रिएक्टिविटी इस पॉजिटिव चार्ज के कारण है। तो वे फैक्टर जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को कम करेंगे उसके रिएक्टिविटी को कम करेंगे और स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उतना ही कम स्टेबल होगा। यहाँ पे देखें ये मेथिल है, इसमें तीनों हाइड्रोजन जुड़े हैं, यह एथिल है। एथिल प्लस आई ग्रुप है, यह इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन के तरफ पुल करेगा, पुश करेगा कार्बन के तरफ, जिससे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी घटेगा। यही सेकेंडरी में 2 तरफ से आ गया है, 2 तरफ से जब आ जाएगा तो और चार्ज डेंसिटी कम होगी, स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। और टर्चरी में 3 तरफ से आ जाएगा, इसलिए और चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी के बारे में। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी हम कह रहे हैं ये क्या होगा, हम यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कार्बन जिसपे धन आवेश है, इस पे धन आवेश है, अगर ये तीनों हाइड्रोजन से जुड़ा है, जैसे ये 3 वैलेंसी खाली है, तीनों हाइड्रोजन हो सकता है, या 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, एक मेथिल ग्रुप है और 2 हाइड्रोजन है, तो यह
कार्बोकैटायन प्राइमरी कहलाएगा, प्राइमरी, और इसे 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से अगर दो कार्बन जुड़े हुए हैं जिस पर धन आवेश है उससे, इस कार्बन पर धन आवेश है उससे दो कार्बन जुड़े हुए हैं जैसे इसमें, यह सेकेंडरी 2 डिग्री कहलाएगा। और जिस पे धन आवेश है उसे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो यह टर्शरी कार्बोकैटायन कहलाएगा। टर्शरी कार्बोकैटायन देखिए 1 2 3 जुड़े हुए हैं। इस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का क्लासिफिकेशन हम करते हैं। और इसमें स्टेबिलिटी आर्डर आप देखिए, टर्शरी का सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर प्राइमरी का और फिर सेकेंडरी का। दूसरा फैक्टर जो रेजोनेंस है वो कैसे प्रभावित करता है इसको हम देखेंगे। ये दो फैक्टर हैं जो इसके कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को प्रभावित करते हैं। एक जो है हाइपर कंजुगेशन जिसके बारे में हम स्टडी किए, दूसरा है रेजोनेंस। रेजोनेंस आप जानते हैं जहां कहीं भी पाया जाता है वह मॉलिक्यूल या आयन की स्टेबिलिटी बढ़ा देता है। रेजोनेंस इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इफ प्रेजेंट, इट इज मोर इफेक्टिव देन हाइपर कंजुगेशन। यह हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा प्रभावी होता है। फॉर एग्जाम्पल ये लाइल कार्बोकैटायन देखिए, इसमें रेजोनेंस होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, आप पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा। दो स्ट्रक्चर, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा, एक यह एक यह। रेजोनेंस कंसेप्ट के अनुसार वास्तविक स्ट्रक्चर इनमें से कोई भी नहीं होगा, बल्कि इनका मिला जुला एक हाइब्रिड होगा जिसे रेजोनेंस हाइब्रिड कहेंगे। इस हाइब्रिड में यहाँ पर भी डबल बॉन्ड करेक्टर है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड करेक्टर है, इस कार्बन पर भी पॉजिटिव है, इस कार्बन पर पॉजिटिव है। यानी रेजोनेंस के कारण यह होल पॉजिटिव न होकर के हाफ पॉजिटिव हो गया। अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 2 कार्बन एटम्स एट ए टाइम ए कार्बन बियर्स ओनली हाफ ऑफ द पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। रेजोनेंस क्या किया कि चार्ज डेंसिटी को कम कर दिया, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए ये एलिल कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। बेंजाइल कार्बोकैटायन के बारे में देखें, इसमें इसके कंजुगेशन में 3 पाई बॉन्ड है, इसलिए इसके अलावा 3 और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखे जा सकते हैं। देखिए कैसे लिखा गया है, यह जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये बन गया। फिर यह पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, दूसरा बन गया। फिर यह पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये तीसरा बन गया। इस तरह से 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें पॉसिबल होंगे। वास्तविक स्ट्रक्चर इनमें से कोई नहीं होगा, बल्कि इनका मिला जुला एक हाइब्रिड होगा, सभी में डबल बॉन्ड करेक्टर होंगे और एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 4 कार्बन एटम्स, 4 कार्बन एटम्स एट ए टाइम ए कार्बन बियर्स ओनली 1/4 ऑफ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। इस प्रकार से चार्ज डेंसिटी और कम हो गया, इसमें आधा हुआ है तो इसमें 1/4 हो गया, स्टेबिलिटी इसकी और बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी इसकी और बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर ये 2 बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ हो तो अभी ऊपर वाले में देखें कि एक बेंजीन रिंग के कारण 3, तो 2 होगा तो 3 इसके कारण, 3 इसके कारण 6 और एक ये है ही है, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें पॉसिबल होंगे। अगर तीनों बेंजीन रिंग पीएच माने बेंजीन रिंग फिनाइल ग्रुप, तीनों बेंजीन रिंग जुड़ गया तो 3 इसके कारण, 3 इसके कारण, 3 इसके कारण, कुल 9 और एक ये है ही है, 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा। इसमें 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हम जानते हैं जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वह उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। इस प्रकार से ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा, फिर ट्राइफिनाइल मिथाइल और फिर बेंजाइल, फिर एलाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होगी। इज द स्टेबिलिटी आर्डर ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। और दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस को, तो जो आर्डर मिलेगा ट्राइफिनाइल मिथाइल, डाइफिनाइल मिथाइल, बेंजाइल, एलाइल, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मेथिल कार्बोकैटायन, या जो स्टेबिलिटी आर्डर होगा। थैंक्स, आज इतना ही, फिर दूसरे वीडियो में आप देखेंगे।